Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going through the Clinical Optics in Ophthalmology Basics and Advanced, Part 5, revising it with the help of a quiz. And in this part we covered spectacle correction, the concept of vertex distance, the error length concept, and what does this term of refractive error means, and then the concept of near point. And before that, we have covered in the part 1 of this series, there was a pre-test and introduction to this course, followed by the concept of light rays. They're traveling from left to right, and the assumptions we have made for understanding of clinical optics. And we touched the properties of light and laws of reflection and some concepts of refraction, then lenses and mirrors, and tracing the image in the lenses and mirrors with the help of ray diagram and the basic concepts of physical properties of light. Then we had an intriguing discussion on vergence. The parallel rays carry zero vergence, the diverging rays minus, and the converging rays plus. We had a discussion on diopters and focal length, and the distances left to the lens are minus and right to the lens are positive. And now we revise our part 5, that is spectacle correction, vertex distance, error length concept, and near point. So you can use calculator if you like. We start from माइमा. ये blanks fill करनी है. This is primary focal point. Why? The rays become parallel. ये जहाँ पे मेरा माउस है, ये सेकेंडरी फोकस पॉइंट है. Why? जो 0 वर्जेंस की रेंज जो है लेंस से पास होकर कन्वर्ज है, वहाँ क्रॉस करनी है. जी डॉक्टर समरा. हाँ जी. Of a concave lens. Why? So rays of the passing focal length have become parallel, and they appear to cross at the focal point. जी. secondary focal point Of diverging lens. diverging. Why? Because rays after passing the parallel rays पहले after passing diverge हो गई, and they appear to converge on the back side. They appear to cross at this point, which is known as secondary focal point. Sorry, point. Define conjugate points. point that the image and the object polygon. Very good. Far point. Sir, it's an imaginary point in the space for which there are retinal similar correspondence. Not
Can't you read it from the screen? What is we use space or we use the retina? And I do not. होता है इंसान कभी उसके वो नहीं कबूल कर सकता नई बात को इतनी आसानी से। जी डॉक्टर समरा, indicate where the parallel rays will meet for each refractive status by extending the rays. What's the name of this location? On the in front what's the term we use? Behind the retina. What's the name for this location? G. Second, parallel rays from infinity coming to a myopic eye. In front of retina. Where they will cross? In the front of retina. क्या term है उसके लिए? What's the name for this location? Front of retina. जी, emetropic के लिए? On the retina. Secondary focal points. Name of these locations are? Secondary focal. Okay. देखो आप कॉन्सेप्ट अपना आपने मिस कर दिया ना। तो कॉन्सेप्ट इज कि पैरेलल रेज अगर हम उसको ऑप्टिकल सिस्टम को फ्यूज करके एक ही लेंस बना लें तो पैरेलल रेज जहां क्रॉस करेंगी वो सेकेंडरी फोकल पॉइंट होगा और जहां से निकलने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी वो प्राइमरी फोकल पॉइंट होगा। ठीक है, ये आप क्लियर है? यहाँ पे ये ब्लैंक्स हैं। Place a lens in front of an eye so that the क्या लिखें of the lens coincides with the with the Secondary focal point. you are right. Place a lens in front of the eye so that the secondary focal point of the lens coincides with the far point of the eye. Secondary focal point क्या होता है? जहां पे क्रॉस करती हैं या करती हुई नजर आती हैं तो उसको अगर आप आई के फार पॉइंट पे डाल दें तो दैट इज रिफ्रैक्शन, जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को। ये हमने किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। अ पेशेंट इज अ 5 diopter hyperope. He is capable of total 10 diopters of accommodation. Draw the appropriate error lens. Uncreep show हो जाएगी. Indicate the location for this far point. Draw and label it. Absent corrective lenses for surgery. Where is the near point relative to the core plane, the corneal plane? His range of clear vision is from where to where? पहले हम ये बात नीचे वाला सवाल हम पहले हल कर लेते हैं कि patient is 5 diopters hyperope and he is capable of producing 10 diopters of accommodation. Error lens बाद में ड्रॉ करते हैं तो उसका किधर होगा फार पॉइंट? जल्दी करें ना बेटा, 5 चाहिए उसको, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है? 10 है
तो 5 यूज कर लेगा तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी पे रहेगा ना। अगर अकोमोडेशन का तस्करा ना होता तो फिर तो उसका बिहाइंड द रेटिना ही था हाइपरओप का, लेकिन उसने अकोमोडेट कर लिया तो लेंस तो डाल लिया उसने आगे, तो वो 5 डायोप्टर डालने से उसका फार पॉइंट दोबारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। नियर पॉइंट कहाँ होगा? कितने रह गए उसके पास मजीद डायोप्टर्स? 5 डायोप्टर्स, तो वो यूज करेगा तो कहां तक देख सकेगा? 100/5 इज 20, तो 20 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होगा। तो रेंज ऑफ क्लियर विजन कितनी होगी? 20 फ्रॉम इन्फिनिटी टू 20, और यहाँ पे वो टोटल ये 10 डायोप्टर अकोमोडेशन अपनी यूज कर चुका होगा। अब जो अप्रोप्रिएट एरर लेंस कितना होगा जिसका सेकेंडरी फोकल पॉइंट इस पेशेंट के फार पॉइंट से कंसाइड करे? अब हमें उसकी अकोमोडेशन को हमने काउंट नहीं करना, अब हमने रिफ्रैक्टिव एरर पे जाना है। तो होना तो वो उतना ही है, -5 ही होना है, वो तो हमें पता ही है। +5 कि -5? -5। वो तो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया। एरर लेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर लेंस? वो पॉइंट जो कम या ज्यादा कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है या बहुत कम है या बहुत ज्यादा है नॉर्मल से? +5 इसका जो एरर लेंथ है वो -5 डायोप्टर है। उनको सब बताते हैं +5 हाइपर होगा, तो हमें टू बी नीडेड जो होता है वो बताते हैं, हाँ, तो वो माइनस मिलेगा ना। जो वैसे एक्स्ट्रा सेक्स हाँ या बहुत सेक्स है माइनस है, ये 5 ज्यादा है हाइपरोप के पास, तो कम है। वो माइनस हो गई ना, माइनस। हाइपरोप के पास तो पावर कम है, तो -5 कैसे लगाएंगे उसको? कोई डाइवर्जिंग है ना, और हमें नीड करना है कि वो पीछे जो बन रहा है हमें उसको कन्वर्ट करके लाना है। हाँ, तो -5 से कन्वर्ज होगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। वो एरर लेंथ है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली तो उसको अगर आपने डालना है बगैर अकोमोडेशन के तो आपको +5 चाहिए ना, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि एरर लेंथ को करेक्टिव लेंथ से आपने फर्क रखना है। हाइपर होता है +5 तो मैं डाइवर्जिंग भी हुआ है, लगाया नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए उसकी एरर को कैलकुलेट किया। The myopic eye has too much converging power. That's why the rays are crossing in front of the retina. Zero vergence की rays जो हैं। तो refractive error of myopic eye can be thought as of resulting from excess converging power. To explain this extra convergence, it is as if the myopic eye has an extra plus lens within it that is causing the refractive error. Now try to जी सर मुझे type your answer. कि अब हमने दोबारा ताज़ा कर लिया कॉन्सेप्ट कि एरर लेंस
वो एक्सेस या कमी है जो आई को, जिसके नतीजे में वो एरर पैदा हो रही है। सर ये जो ब्लू वाला लेंस उन्होंने सिमेट्रिक डायग्राम लगाया हुआ है के साथ, वो मतलब एरर है जो एक्स्ट्रा लेंस पावर है। हाँ, तो उसमें असल में +5 ज्यादा है, दैट इज एरर लेंस। तो मुझे लग रहा है करेक्शन के लिए लगाया बेटा इसलिए तो मैंने क्लियर किया ना, जी। तो यही बातें बाद में तंग करती है ना, इन्हीं बातों पे एमसीक्यूज गलत होते हैं। तो एक बात को पूछने के कई तरीके हैं। मैं आपसे वर्जन्स की टर्म्स में भी पूछ सकता हूँ, डायोप्टर्स की टर्म्स में भी पूछ सकता हूँ, डिस्टेंस में भी पूछ सकता हूँ। फिर ये ऑप्टिक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, रेज की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए अव्वल तो हमारे यहाँ कन्वेंशनली हम एरर लेंथ को डिस्कस नहीं करते, हम तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन पे जाते हैं, फार पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पे। लेकिन बहरहाल इसको समझने से आपको आसानी होती है कि ये जो -5 लगा रहा हूँ, ये क्यों लगा रहा हूं मैं, इसलिए कि उसमें +5 ज्यादा है। तो ये एरर लेंथ है कि से उसमें जितनी ज्यादा पावर है जिसकी वजह से इमेज आगे बन रहा है, वो एरर लेंथ है। और हाइपरोपिक आई में जितनी पावर एक इमेट्रोपिक आई से उसमें कम है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रहा, वो एरर लेंथ है। तो वो उसका करेक्टिंग लेंथ नहीं है, वो तो एरर कैलकुलेट कर रहे हैं आप कि पैरेलल रेज आए तो जिनकी वजह से वो रेटिना पे फोकस नहीं हुई, वो कितनी ज्यादती है या कितनी कमी है। तो चूंकि हमें ना इसमें रिलैक्स माहौल में वी आर ट्राइंग टू ग्रैब वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, तो हमारी बेशक एक ही स्लाइड डिस्कस हो, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को सीमेंट कर लें और कोई गलत कॉन्सेप्ट ना बने। यहां तक हम क्लियर थे। यहाँ हमने एक मिस्टेक की कि ये सेकेंडरी फोकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि पैरेलल रेज यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं या क्रॉस होती हुई नजर आ रही हैं। एक्चुअली ये जो बिहाइंड द रेटिना, ये तो गुजर नहीं सकती ना वहां से, रे तो वहां खत्म हो गई है, तो ये नजर ऐसे आएगा जैसे वहां क्रॉस करेगी। तो +5 डायोप्टर में जो उसमें एरर लेंस है, वो कितनी उसमें कमी है, -5 डायोप्टर्स की। और ये माइनस में क्यों है? इतना इतनी एरर है जिसकी वजह से वो रेज डाइवर्ज होके पीछे चली गई हैं। तो ये करेक्ट नहीं कर रहे हम अभी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने डायोप्टर की एरर है जिसकी वजह से फार पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो वो कितना है, -5। तो लोकेशन, इसका फायदा क्या हुआ है? देखिए आपसे सवाल आ सकता है ना कि आप कह तो रहे हैं बिहाइंड द रेटिना, तो है कहां पे? +2 डायोप्टर हाइपरोप का कितना बिहाइंड है? अगर आई को आपने 60 डायोप्टर का लेंस बना लिया है, तो फार पॉइंट कितना पीछे है आंख के? मैं अगर आपको लेंथ भी बता दूं उसकी, कि आई की लेंथ 22 मिलीमीटर है, तो अगर यही एमसीक्यू आ जाए कि रेटिना तो 22 मिलीमीटर पे है उसका कॉर्निया से, तो कॉर्नियल प्लेन पे आपने उसको एक लेंस बना लिया है, तो अगर मैं पूछूं कि जो 2 डायोप्टर का हाइपरोप है, उसका फार पॉइंट रेटिना से कितना पीछे है? जी बेटा, 50 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है ये? फिफ्टी आई ना, वो 2 का एरर लेंथ आया -2, उसका जो
बनेगा -2 के लेंस का फार पॉइंट जहां पैरेलल रेज फोकस होती हुई नजर आएंगी वो 50 सेंटीमीटर होगा। तो आई कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। तो 50 - 2.2 47.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंथ होगा उसका फार पॉइंट। इसलिए कॉन्सेप्ट एनग्रेव करने का और सीमेंट करने का ये फायदा है कि वो आपके जो पेपर सेटर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनको ये बड़ा होता है मसला हर दफा कि कुछ नए एमसीक्यूज ऐड होने चाहिए। तो समटाइम्स दे ऐड वेरी डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो अगर आपने इसको हर तरह से ज़हन में बिठाया हो, देखना आप इस तरह का सवाल पहले तो नहीं आया लेकिन आ सकता है ना। ये आप कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, कितना इन फ्रंट? अगर आई की लेंथ 26 मिलीमीटर है और वो -10 डायोप्टर मायोप है तो उसका एरर लेंथ होगा +10x ऐसा ना उसके पास। तो उसका जो सेकेंडरी फोकल पॉइंट है +10 का, वो कहाँ होगा? टेन सेंटीमीटर पे। तो फिर वो रेटिना के इन फ्रंट कैसे आ गया? साठ है ना वो, तो 60 से 10 70, तो 70 का कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना बना फिर? 100/70 तो 1.3 यानी 13 मिलीमीटर। तो वो 26 की थी टोटल, तो 13 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना वो क्रॉस कर जाएंगी। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को डिस्टिंक्शन देना हो, किसी को देखना हो कि ये कितना ज्यादा ऑप्टिक्स में इसकी गहराई है, तो यू कैन आस्क सच अ क्वेश्चन। उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 डायोप्टर वाले पेशेंट का एक स्कीमेटिक आई में जो 60 डायोप्टर जिसकी अपनी पावर है उसका तकरीबन 13 मिलीमीटर पे क्रॉस करेंगी रेस। तो अगर वो 26 मिलीमीटर की आंख है तो 13 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना वो क्रॉस कर देंगे। ये ऐसे ही हमने उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जानना क्यों जरूरी है कि फार पॉइंट है कहाँ पे। तो रेंज ऑफ क्लियर विजन तो हम वी वर एबल टू कैलकुलेट। पेशेंट आपके पास कॉन्टेक्ट लेंस का ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है। She currently wears high fashion specs with a vertex distance of 20 millimeters. She doesn't have time to be refracted. Can't you just use her glasses prescription, your lensometer, the specs, and determine an treatment of -5.5 diopters? क्या मतलब है इसका? पेशेंट है वो ग्लासेस यूज कर रहा है 5.5 के, और वो कह रहा है मैं ट्रैक्शन नहीं करना चाहता, उस ग्लासेस को देख के कॉन्टेक्ट लेंस को और सब्जेक्ट जिससे उन्होंने डाले होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये अक्सर जो कंसल्टेंट है हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर एंड वी आर नॉट रेडी टू बॉदर मच, कहते हैं जहाँ आप जाएं ऑप्टिकल दुकान पे वो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये थोड़ी सी हम यहाँ एक्सरसाइज कर लें तो अब देखें हम उसको जुबानी भी तो बता सकते हैं। ड्रॉ द अप्रोप्रिएट एरर लेंथ। -5.5 डायोप्टर मायोपी है ना, और वो लगा कहाँ हुआ है? 20 मिलीमीटर इन फ्रंट, 2 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द आई। तो एरर लेंथ कितना होगा?
उस प्लेन में तो सिंपल ही है, प्लस 5.5, ड्रा द स्पेक्टिकल लेंस एंड इंडिकेट द वर्किंग डिस्टेंस। एरर लेंस तो ये हो गया, स्पेक्टिकल लेंथ आपने ड्रॉ कर लिया -5.5 डायप्टर का, और वर्टेक्स डिस्टेंस 20 मिलीमीटर है। यही बातें बताई थी ना। इंडिकेट एंड ड्रॉ एंड लेबल द लोकेशन ऑफ द सेकेंडरी फोकल पॉइंट ऑफ द, नहीं आया, आ जाता है, वापस चले जाते हैं। ये आया था, इकट्ठे आए सारे। अब देख, सबसे पहले हमने एरर लेंथ ड्रॉ किया था, एरर लेंथ आया सामने, ठीक है, वो तो सिंपल था। फिर हमने वर्टेक्स डिस्टेंस ड्रॉ किया, आ गया 20 मिलीमीटर, और माइनस लेंथ है एनक है जो वो -5.5 डायप्टर की है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए स्पेक्टिकल लेंस का सेकेंडरी फोकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे। सेकेंडरी फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पैरेलल रेज आए तो क्रॉस करती हुई नजर आए या कर जाए क्रॉस। तो -5.5 का उसको 100 बाई -5.5, ये तो कर दिया हमने स्पेस में ड्रॉ। कैलकुलेट करना है अब इसको, कितना होगा कर लें कैलकुलेटर से। 100 बाई 5.5 तो अगर वो उसके आई के फार पॉइंट से मैच कर गया तो इमेज जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा, टू द रेटिना, फोकस में आ जाएगा। अब जो ये सारी मेहनत हमने क्यों की है, कॉन्टेक्ट लेंथ हमने देना है, उसमें हमने उसको आई के ऊपर रख देना है ला के, तो ये 20 मिलीमीटर डिस्टेंस उसमें ऐड होगा। तो कितना निकाला था आपने? 18.1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर उसमें ऐड किया, 20.1, ऑलमोस्ट जवाब जो है वो तकरीबन क्या आ रहा है? विच लेंस भी जो एरर लेंथ है वो पूछ रहा है कौन सा ज्यादा होगा प्लस, which lens will be more plus, her specs or contact lens? तो उसमें वो -5 आ जाएगा असल में। ठीक है, क्लियर ही है। You refractive an elderly patient and his spouse and indicate to your tech to write treatment for both spectacles and contact lenses for each of them. They lost all of their spectacles and contact lenses in an accident. The husband calls a few hours later, says the tech forgot to indicate which treatments are for him and which are for his wife. Further, she forgot to indicate which are for spectacles and which are for contact lenses. You ask him to read the treatments to you over the phone. He laughs and says, I wish I could. And you hear him call out to his wife. She gets on the phone and reads the 4 treatments. आपने एक कैच है इसमें, उसने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, एनक तो है ही नहीं उसके कोल कोई। पेशेंट ने कहा आई कांट रीड एंड
called his wife to come and read to the doctor, and the wife came and read. अब वो नीचे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, +5, -5, +4.5 and -5.5. अब इस डिस्क्रिप्शन से based on this information determine which treatments are the wife for the wife and which are for the husband. आपने कैच कर लिया इसको? हाँ, वाइफ इज मायोपिक, तो उसका जो फार पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ द आई है, तो उसके फार पॉइंट पे जो इमेज आएगा तो देख लेगी, जो हाइपरओप है वो नहीं देख सकता। तो हस्बैंड ने माजरत की थी, तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हाइपरओप जो है वो हस्बैंड है और मायोप वाइफ है। तो जो मायोप है -5 और -5.5, इनमें से अब दूसरा सवाल ये है कि हस्बैंड +5 और +4.5 है और वाइफ -5 और -5.5 है। तो इनमें से +5 और +4.5 में स्पेक्टिकल का ऑर्डर कौन सा है और कॉन्टेक्ट लेंस का ऑर्डर कौन सा है? +5 इज फॉर अगर फॉर एग्जाम्पल +5 है, वही हम 20 मिलीमीटर कर लें तो उसका 20 है फार पॉइंट, +5 के लेंथ का फार पॉइंट 20 सेंटीमीटर है ना। तो अगर वो 20 मिलीमीटर पे लगा हुआ है तो 22 हो गया सेंटीमीटर। तो 22 को रखेंगे 100/22, तो पावर कम होगी या ज्यादा होगी? कम ही होनी है, कम ही होगी, जितनी भी होगी कर लो बेटा। जब 20 पे डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगी ना, तो 20 से ऊपर जिस भी फिगर से आप 100 को डिवाइड करोगे वो कम ही होगी। तो इसलिए जो +5 है वो फॉर स्पेक्टिकल्स है और 4.5 फॉर कॉन्टेक्ट लेंस है। क्योंकि उसका फोकल पॉइंट साथ ही मूव करता जा रहा है। ठीक है, और जो -5 डायोप्टर है अगर, तो 20 मिलीमीटर पे लगा, वर्टेक्स डिस्टेंस 20 है, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी भी 20 होगी जो उसका सेकेंडरी फोकल पॉइंट है। तो उसमें जब ऐड किया तो 20 में 22 हुई। लेकिन अब यहाँ पे वो जो चीज हमने मिस की है ना, वो फर्क है कि प्लस का किधर होना है और माइनस का किधर होना है। तो रफली आपको तो पता ही होना चाहिए, आपने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं लगाए। क्या होता है, स्पेक्टिकल लेंस से आपके माइनस की पावर कम होती है, ज्यादा होती है? स्पेक्टिकल अगर आपका -5 डायोप्टर हो तो कॉन्टेक्ट लेंस उससे ज्यादा होगा या कम होगा? इसी बात पर ज्यादा होता है, हाँ, कम होती है। जब वो नजदीक लाएंगे ये तो हो गया हस्बैंड हस्बैंड, वाइफ वाइफ। Remember, the shorter the vertex distance of a correction, the more plus is needed to put the image on the retina. जितना दूर होगा लेंस, उसकी कन्वर्टिंग पावर ज्यादा इफेक्टिव होगी ना। जितना उसको आई के करीब लाओगे उसका फोकस उतना रेटिना का पीछे चला जाएगा, तो उतनी उसकी कन्वर्टिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो डॉक्टर समराइज राइट।
के प्लस बढ़ाना पड़ेगा और माइनस उतना कम करना पड़ेगा। Remember, the shorter the vertex distance of a correction, the more plus is needed to put the image on the retina. So an individual contact lens treatment is always more plus than their specs treatment. This is easy to recognize in hyperopic corrections. The number will be higher for contact lenses. This is how we know the husband's specs must be 4.5 and his contact lenses +5. तो कॉन्टैक्ट लेंस में मतलब प्लस होगा नंबर, हमेशा ऐड होगा नंबर। ये तो रटा है ना, तो बाय कॉन्सेप्ट अगर बताना चाहें आप। वर्टेक्स डिस्टेंस तो कम हुआ है ना, वर्टेक्स डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो इमेज आपका पीछे जाएगा, तो यानी कन्वर्जन लेंस जितना करीब आ जाएगा उसकी पावर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फोकस भी साथ ही पीछे चला जाएगा। और डाइवर्जिंग लेंस जितना करीब आएगा उसका फोकस को क्या होगा, वो तो इधर है ना, उसका फोकस भी करीब आ जाएगा, तो उसको पुश बैक करना पड़ेगा पेशेंट के फार पॉइंट से मैच करने के लिए, तो इसलिए उसकी डाइवर्जिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, उल्टा कर, डाइवर्जिंग पावर कम करनी पड़ेगी ना, कम कर। वेरी गुड, तो यू अंडरस्टैंड कि उसकी डाइवर्जिंग पावर कम करनी पड़ेगी, बस यही था इसमें कैच। तो इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि आपने कैसे लॉजिक अप्लाई की है, कि सिंपल उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब है कि वो हाइपरओप है। So with this we end our part 6, the essence of spectacle correction, vertex distance, error length concept, near point। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो इसी पे इख्तिताम करें या आगे पढ़ें? इसको देख लें आप, क्योंकि इसमें मैं और आप काफी कंफ्यूजन का शिकार हैं।